Hello dear students, today I am going to continue chapter 4 of Organization of Commerce and Management, Standard 12th Commerce. Organizing, the second function of the management. We already discussed the first part of this organizing, that is introductory part. We can say introduction, meaning two different definitions given by the Bernard and Allen. Then after simple concept but includes different type of the things, right? It was already completed. Now let's move to the other point, that is characteristic. So as we discussed earlier, and I gave the information in my session also, right, and in video also, that particularly ABCD, four different type of the questions or five questions are there, one, two, right, maybe depend upon the at that time periods blueprint. Actually generally ABCD આવતું હોય છે, maybe sometime one or two questions will be increase or decrease, depend. So this particular question is for 2 and 3 mark. So sometimes information is there. State the characteristics of organizing, any 6. Discuss the characteristics of organizing. At that time you have to look after the marks 2, yeah, 3. Section C or D. Then after in 2 marks most of the questions state any 4 characteristics or explain any 2 characteristics of organizing. These are the questions. તમારા માટે કોમન વસ્તુ છે. 11th માં તમે બધું આપણે ક્વેશ્ચન્સ કઈ રીતે પૂછાય છે એનું ડિસ્કશન કરી ચૂક્યા છે. ઓલ્સો કન્ટિન્યુ જ રહેશે. સો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધ ફર્સ્ટ characteristics, that is goal oriented activity. अब ટેલ મી, કોઈ એક એક્ટિવિટી એવી છે કે જેમાં ગોલ ના હોય? નો, એવરી એક્ટિવિટી ઇઝ with the sum of the goals. તમારી પણ એક એક્ટિવિટી તમે જુઓ ને, સામાન્ય કોઈક ગોલને જ અચીવ કરવા માટે આપણે કામ કરીએ છીએ ને, રાઈટ? સો સિમ્પલી વી આર ઇન ધેટ ટાઈપ ઓફ ધી ફિલ્ડ, વી આર ઇન ધેટ ટાઈપ ઓફ ધી એરિયા or in unit where we have to achieve different of the goals. So this particular organizing is also goal oriented. We have to achieve our target. And सबको यार कमाना है ना, तो मेन ऑब्जेक्टिव इज टू अर्न द प्रॉफिट, पर उसके साथ कई अलग अलग चीज़ें होती है, राइट? सो लेट्स सी what does it mean. और at that time when in session we discuss, મેં કહ્યું હતું કે સૌથી વધારે જે ક્વેશ્ચન પૂછાયો છે આ ચેપ્ટરમાંથી 2 માર્કમાં સેપરેટલી એ આ છે, goal oriented activity. કઈ રીતે? on the basis of statement, right? The organizing is created for the sake of achieving the goal of any business unit. So the main particular thing is for the one unit is to achieve their goals. तो ऑर्गेनाइजिंग કેમ ક્રિએટ થાય છે? વોટ ઇઝ ધ રીઝન બિહાઇન્ડ ધીસ ઓર્ગેનાઇઝિંગ? રાઈટ, ફોર ધ સેક ઓફ ધ અચીવિંગ ધ ગોલ્સ, રાઈટ? વી હેવ ટુ અચીવ ધેટ વન ઓફ એની યુનિટ, સ્મોલ બિગ યુનિટ જે પણ છે. સો ઇન ધ બિઝનેસ યુનિટ the main objective as well as departmental objectives or sub goals are also determined. One more question. Okay, so simply we can say okay, one business unit is there, so only one goal? No, we have different type of the goals. One main objective, उसके साथ कई डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स है, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आर देयर, उसके भी कई ऑब्जेक्टिव्स है. सेलिंग डिपार्टमेंट यानी सेल्स डिपार्टमेंट है, राइट? दे हैव टू सेल द गुड्स ना, राइट? मार्केटिंग को हम अलग से लेते हैं, राइट? तो मार्केटिंग मीन्स डिफरेंट थिंग्स आर देयर. हम देखेंगे 10th चैप्टर में उसमें क्या डिफरेंस है मार्केटिंग और सेलिंग में, राइट? तो उसको अलग दिया जाता है. फाइनेंस डिपार्टमेंट, उसका कोई गोल अलग है, राइट? हाउ टू गेट और हाउ टू अवेल द फाइनेंस फ्रॉम द अदर इंस्टीट्यूशंस, नॉट ओनली द बैंक्स. तो सबके गोल अलग अलग होते हैं, डिपार्टमेंटल उनके हिसाब से वो काम करते हैं, और सब गोल्स भी होते हैं, राइट? अब क्लर्क का क्या गोल होगा? क्लर्क का ये गोल होगा कि मैं फटाफट अकाउंट लिख दूं, तो दूसरा मुझे आई एम टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, ना, क्लरिकल डिपार्टमेंट. सो सबका गोल होता है, लेकिन उसका गोल ऐसा होता है कि विदाउट एनी टाइप ऑफ द एरर्स काम होना चाहिए. ये सब होते हैं, वो डिटरमाइन किए जाते हैं एडवांस में. सो इन एडिशन टू दैट देर आर ऑल्सो द इंडिविजुअल गोल्स of employees. Yes, it's the main thing. Convert your goals into the one particular business goal. आपने देखा होगा और हमने उसका डिटेल भी दिया था चैप्टर 2 में, राइट? तो आपके जो गोल्स है उसको कन्वर्ट करो बिजनेस गोल्स में, लेकिन आपके खुद के गोल होने चाहिए. मेरा खुद का गोल है, आई विल डिस्कस, राइट, इन डिटेल व्हेन वी आर इन पर्टिकुलर फेस टू फेस. मेरा भी गोल है कि मेरा कोई स्टूडेंट है वो टॉप में आए, मेरा गोल है, एंड आई विल, राइट, मैं उसको पूरा करने की पूरी कोशिश करूँगा. आई विल ट्राई to complete, right, that my goal within this year 101%. I will try, but circumstances from last 2-3 years आप देख रहे हो ऐसे होते हैं, तो हम भी ऐसा कुछ ज़्यादा नहीं कर सकते. लेकिन yes, my personal goal is that. So ये जो पर्सनल इंडिविजुअल गोल है ना,
अगर वो फुलफिल हुआ तो बाय डिफ़ॉल्ट बिजनेस के गोल्स फुलफिल होंगे 101%, राइट। सो खुद को अपने एक गोल के साथ रखो, right? अपना खुद का गोल होना चाहिए। अभी तो आप स्टूडेंट्स हो, राइट। लेटर ऑन व्हेन यू आर इन द फील्ड ऑफ दी मे बी कॉर्पोरेट सेक्टर जाओगे या कोई भी सेक्टर में जाओगे तो आपके खुद के गोल जरूरी है। हैंस ऑर्गेनाइजेशन इज अ लीनियर स्ट्रक्चर दैट कोऑर्डिनेट्स विद द गोल्स ऑफ बिजनेस। अब ये लीनियर स्ट्रक्चर क्या है हम देखेंगे लेटर ऑन यही चैप्टर में। लीनियर लाइन वाइज कहते हैं उसको। तो ऑर्गेनाइजेशन क्या है, वो एक लीनियर स्ट्रक्चर है, राइट, जो कोऑर्डिनेट करता है गोल्स ऑफ बिजनेस, यानी एक के बाद एक गोल डिसाइड हो गया। लीनियर यानी ऊपर से नीचे तक सब जुड़े हुए हैं, राइट, लाइन वाइज। तो पहला दूसरा तीसरा, तो ये कोऑर्डिनेट करता है बिजनेस गोल्स को। ऑल्सो वो नॉट ओनली दिस पर्टिकुलर गोल्स आर फॉर वन यूनिट, राइट, वो अलग अलग यूनिट के अलग होंगे तो डिपार्टमेंटल गोल्स। और तीसरा है गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज। तो ये जो पर्टिकुलर लीनियर स्ट्रक्चर है लाइन में दिएगा, ये सब गोल को कोऑर्डिनेट करेगा। अब मेरे गोल को पूछा जाएगा भाई व्हाट इज योर गोल, चलो मैं मार्केटिंग में व्हाट इज योर गोल बोलो, तो मैं बोलूँगा कि सबसे अच्छी प्रोडक्ट हम मार्केट में बेचें। तो बेचेंगे का प्रोडक्शन वाला बनाएगा उसका गोल होना चाहिए ना, तो सबसे अच्छी प्रोडक्ट बनाने का गोल। तो उसके रिसर्चर्स जो है उनको कुछ अच्छा रिसर्च करना पड़ेगा, तो उनका भी गोल। तो देखो उनका पर्सनल गोल कब बिजनेस यूनिट के गोल में कन्वर्ट हो जाएगा वी डोंट नो, लेकिन मुझे अच्छा प्रोडक्ट बेचना है, राइट। अब ऐसा मैं बोलूँ विदाउट मार्केटिंग विदाउट एडवर्टीजमेंट, मार्केटिंग के अंदर का एक टाइप एडवर्टीजमेंट है वो देखेंगे। तो विदाउट एडवर्टीजमेंट आर यू एबल टू सेल द गुड्स इन द मार्केट, तो है कई अलग अलग उसके भी नुस्खे हैं, उसको भी हम देखेंगे, लेकिन हाँ सबका गोल है। So we have to coordinate that one. Hence, it can be also referred as a goal-oriented activity. So question आएगा why organizing is known or why organizing is referred as goal-oriented activity? ये लिखो। Sentence आता है, explain the sentence, उसके हिसाब से तो भी आपको यह information लिखनी है। That is the first one. Second one, planning based. Organization is made on the basis of planning. क्या कुछ है जो अकेले हो रहा है, सब प्लानिंग पर ही बेस्ड ही ना, इसलिए उसको पहला रखा है। द फर्स्ट पर्टिकुलर फंक्शन ऑफ द मैनेजमेंट इज प्लानिंग, तो उसके हिसाब से सब कुछ होता है। सो ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली मेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। अगर आपने प्लानिंग में कुछ बताया ही नहीं कि आप क्या करने वाले हो, कौन सी प्रोडक्ट प्रोड्यूस करनी है, किसको क्या काम करना है, राइट, ये एक पॉलिसी फ्रेम नहीं किया है, तो ऑर्गेनाइजिंग कैसे होगा, स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट होगा, राइट। सो इट इज टोटली बेस्ड ऑन प्लानिंग। एंड ऑल्सो वी कैन से ऑब्जेक्टिव्स डिटरमाइंड बाय द प्लानिंग। ये एक मार्क का क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स, राइट, कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे बनता है, बेसिस ऑफ प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ प्लानिंग। तो प्लानिंग के हिसाब से सब कुछ होता है। सो हेंस बिफोर ऑर्गेनाइजिंग इट इज नेसेसरी टू हैव प्रॉपर प्लानिंग। अगर आप कुछ ऑर्गेनाइजेशन करना चाहते हो तो उसका प्लानिंग करो, ये बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। घर से निकलते हो बाजार में कुछ लेने के लिए, राइट, उसका आपने प्लानिंग किया है, जी जाना है वो नक्की है। you want to purchase something, you are in need of some goods, you are in need of the some of the materials, right। तो बिफोर ऑर्गेनाइजिंग आप जब व्यवस्था करने जा रहे हो तो उसका प्लान करो, क्या लाना है कैसे लाना है। ये घर का एक सिंपल एग्जांपल है, क्या लाना है कैसे जाना है कैसे आना है। अगर लेडी है तो रिक्शा में जाएंगे, रिक्शा में वापस आएंगे, एक्टिवा लेके जाएंगे, पेट्रोल भरवाना बाकी है, टाइम जाएगा, राइट, लाइन होगी, उसके बाद पैसे नहीं एटीएम से लेने हैं, अगर गूगल पे है, राइट, कोड याद है नहीं है, सब कुछ कितना ऐसा हम देखो ना तो इतना पूरा एक लिस्ट बनता है। तो पहले तो ये जो है वो, उसके बाद क्या लाना है उसका एक प्लानिंग करना पड़ेगा ना। कई बार ऐसा घर के आने के बाद, घर वापिस आने के बाद मालूम पड़ता है कि यार ये तो रह गया। तो प्लानिंग करो, एक चिट्ठी बनाओ, उसमें लिखो। अब तो मोबाइल में नोट्स भी बनता है, ये सब कुछ तो पहले प्लान करो। ये एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ सिंपल कि वेल प्लान होना चाहिए। ऑर्गेनाइजिंग इज टोटली बेस्ड ऑन प्लान, सो प्लान बेस्ड है इसीलिए सब कुछ। स्ट्रक्चर ऑफ एनी यूनिट इज बेस्ड ऑन इट्स फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान। जो हमारा पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बनेगा, राइट, वो टोटली फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान के ऊपर होगा। क्योंकि अगर स्ट्रक्चर आप बनाते हो तो आपने क्या डिसाइड किया, फ्यूचर में क्या करने वाले हो, वो टोटल इन्फॉर्मेशन चाहिए आपके पास। तो कोई भी छोटा यूनिट, कोई भी बड़ा यूनिट जो भी है वो टोटली बेस्ड है फ्यूचर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान के ऊपर। सो हेंस इट कैन बी सेड दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर प्लानिंग। ये भी 2 मार्क का क्वेश्चन हो सकता है कि वाई इट इज़ नोन एज, वाई वी कैन से दैट ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ड ऑन प्रॉपर प्लानिंग, दिस इज द रीज़न। नेक्स्ट वन, थर्ड वन,
द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये मैंने बोला था कि बारी बारी ये आएगा। डेलीगेशन मीन्स टू गिव, टू असाइन, किसी को देना। क्या दे रहे हैं? अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ओनली अथॉरिटी? नो। ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी? नो। बोथ मस्ट बी बैलेंस, राइट? So the people working towards achievement of a common goals are allotted work as per their capabilities and their skills. मैं कुछ करा सकता हूँ, मैं कुछ सिखा सकता हूँ, मैं खुद कुछ कर सकता हूँ. सो एज पर माई एबिलिटी, एज पर माई वर्क, एज पर माई स्किल, क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, दे विल गिव दी और दे विल अलॉट दी वर्क टू मी. ओके, अगर यूनिट है, मुझे प्रोडक्शन में डालेंगे, आई कांट एबल टू डू द वर्क इन प्रोडक्शन सेक्टर बिकॉज आई एम नॉट द मैन ऑफ द इंजीनियर और नॉट द मैन ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइप ऑफ द वर्क. मैं कुछ ऐसा काम नहीं कर सकता प्रोडक्शन में है, मशीन नहीं चला सकता, राइट? हाँ, कुछ लेना है, सिंपल है, उसको डाल सकता है, एक बैग में भरना है, वो सब कॉमन वर्कर लेवल का काम सब कोई कर सकता है. लेकिन अगर जब स्किल की बात आए, कैपेसिटी की बात आए, तो आपकी सबकी खुद की स्किल होती है. सो एज पर माई स्किल आई विल गेट द वर्क, सो दे विल अलॉट द वर्क. मेरी स्किल के हिसाब से वो मुझे काम देंगे. एट द सेम टाइम सच अ पर्सन इज ऑल्सो इन्फॉर्म्ड अबाउट देयर अथॉरिटी. आपको काम दिया गया, इसके हिसाब से अलॉट किया गया वर्क, राइट? स्केल पर ध्यान रखना, राइट? वो ऐसे ही घूमती नहीं है. सो उसके अलॉट काम किया, उसके हिसाब से आपको अथॉरिटी मिलेगी. वैसे ज़्यादा अथॉरिटी कुछ काम की नहीं है, कम अथॉरिटी से आप काम भी ना कर सको, कई बार ऐसा होता है, तो इट मस्ट बी बैलेंस्ड. सो हैंस ऑर्गेनाइजिंग इज द स्ट्रक्चर टू एस्टैब्लिश रिलेशनशिप ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी अमॉन्ग द पीपल. यानी जब भी ऑर्गेनाइजिंग आएगा, जो स्ट्रक्चर बनेगा, तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर और ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, राइट, वो एक पर्टिकुलर एस्टैब्लिशमेंट करता है इस दोनों का, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी का, कि क्यों, क्या, क्यों, कैसे काम करना है, सब कुछ यहाँ ही डिसाइड होगा. तो उसके हिसाब से आपको ये अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी. फोर्थ वन एक्चुअली, इम्पोर्टेंस टू ह्यूमन एलिमेंट. यहाँ पर भी ह्यूमन एलिमेंट काम करता है. कैसे? इन ऑर्गेनाइजिंग ह्यूमन बीइंग्स आर एट द सेंटर. ये भी एक मार्क का क्वेश्चन है. जैसे जैसे आगे बढ़ते रहोगे, कई क्वेश्चंस अराइज होते रहेंगे, नहीं? तो कई क्वेश्चंस में ऐसा भी होगा कि ह्यूमन एलिमेंट सबके लिए ज़रूरी है, लेकिन ऑर्गेनाइजिंग के लिए वो सेंटर पर है. द सक्सेस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन इज डिपेंड ऑन द पीपल हु आर वर्किंग इन इट. मैंने ही काम किया है ऐसा नहीं होता है. હું જ બધું કરું છું ના, મને જ બધું આવડે છે ના, રાઈટ? ધ સક્સેસ ઓફ ધી હોલ ઓર્ગેનાઇઝેશન, હોલ યુનિટ, હોલ ઇન્સ્ટિટ્યુશન, વોટ એવર યાર, તમે જ્યાં કામ કરો છો એ બધી જ વસ્તુ, રાઈટ, એ ટોટલી ડિપેન્ડ છે પીપલ ઉપર હુ આર વર્કિંગ ઇન ઇટ, જેની અંદર કામ કરે છે. ઓનલી વન પર્સન નો, ઇટ્સ અ ગ્રુપ ઓફ ધી પીપલ. અને આપણે સ્ટાર્ટ કર્યું ત્યારે જ કહ્યું હતું, ઓર્ગેનાઇઝિંગ ઇઝ રિક્વાયર્ડ when the group of the people are there. So people are working together, some of the objectives are there, common goals are there, they are achieving by getting the authority and responsibility, right? Their achievement of the goals are there. So उनके हिसाब से ये काम होता है. तो याद रखो, जो काम करते हैं वो सब. Hence for effective organizational structure, effective human relation establishment is necessary. ये सेंटेंस हमेशा याद रखना, भले ही आप कोई भी फील्ड में जाओ, कि जब भी आप ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो, उसका कोई ना कोई एक एग्जिस्टेंस बनाए, उसको इफेक्टिव जो है उसको आगे ले जाना है या कुछ नया करना है. तो अगर आपको इफेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाना है, तो इफेक्टिव ह्यूमन रिलेशंस होना चाहिए, राइट? ऑलवेज बी इन टच विथ ऑल दोज हु आर वर्किंग, राइट? आपको कुछ काम भी ना हो फिर भी पूछो, उसका हालचाल पूछो. दुनिया बहुत अलग है, काम से ही काम रखना है, नो प्रॉब्लम, बट ह्यूमन एलिमेंट सेंटर में होना चाहिए. ह्यूमन रिलेशनशिप होना चाहिए, उसका एस्टेब्लिशमेंट होगा तभी गोल्स अचीव होंगे. दिस इज द फोर्थ वन. फिफ्थ वन, फ्लेक्सिबिलिटी. ये कॉमन है, लेकिन जब पूछा जाता है तो आंसर नहीं मिलता है हमें प्रॉपरली. तो याद रखो फ्लेक्सिबिलिटी, राइट? यू कैन चेंज. तो व्हेन वन द ऑर्गेनाइजेशन इज फॉर्म, देयर आर चांसेस फॉर चेंज इन द सेम. अब हम ऐसे रिजिड तो है नहीं कि कुछ चेंज ना कर सके और ना करें. सो रिजिडिटी को असाइड करो. कीप इन माइंड व्हेन द पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजिंग इज देयर, ओके, ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट हो गया है, उसका स्ट्रक्चर फॉर्म्ड हो गया है, राइट? चांसेस होता है कई बार कि उसको चेंज करना पड़े, राइट? तो फ्लेक्सिबिलिटी इज देयर. सुटेबल चेंजेस कैन बी मेड अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सर्कमस्टेंसेस और सिचुएशंस. से हम नहीं बोलते हैं कि एक बार ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर शुरू हो गया तो उसको चेंज मत करो. नहीं नहीं नहीं, ऐसा थोड़ी ना है. चेंज कर सकते हो, लेकिन सुटेबल चेंजेस होने चाहिए, जो प्रॉपरली ज़रूरी है वही.
एक बार आपने स्ट्रक्चर डिसाइड कर लिया, ये काम यही करेगा, इसके ऊपर ये है, राइट, आपने सुपीरियर डिसाइड कर लिया, आपने सबऑर्डिनेट डिसाइड कर दिया, काम दे दिया, अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन कई बार ऐसा होता है, कुछ इन आउट होता है, तो सुटेबल चेंजेस करने पड़ते हैं। हम ऐसा नहीं बोलते हर रोज चेंजेस करो, लेकिन जरूरी हो तब चेंजेस जरूरी है। सो वी कैन से दैट इज चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टेंसेस एंड सिचुएशंस, राइट। पैंडेमिक है, वही लेके घूमेंगे कि एक ही काम करना है, यही प्रोड्यूस करना है, यही काम करना है। तो कई बार ऐसा होता है कि उसकी डिमांड ही नहीं है, मार्केट में कोई आता ही नहीं है लेने को, तो फिर आप जो भी प्रोड्यूस करते हो उसको असाइड कर दो, कुछ नया सोचो, राइट, आपके लेवल का, राइट, आपके बजट का, टेम्पररी बेस पर, राइट, शायद वो परमानेंट भी हो जाए, डिपेंड्स। So the changes or variations can be made when there are major changes in the business environment. Also technological advancement और न्यू डिस्कवरीज। कई बार ऐसा होता है, राइट, सॉरी इट्स अ न्यू डिस्कवरी। सो कई बार ऐसा होता है कि चेंजेस और वेरिएशन करना पड़ता है, हमें प्रोडक्ट बदलना पड़ता है, उसका लुक बदलना पड़ता है, उसके अंदर जो आता है वो बदलना पड़ता है, राइट। जब ये आए, ये कब आता है, तो एक मार्क का प्रश्न हो सकता है आपके लिए क्वेश्चन कि देयर आर मेजर चेंजेस इन द बिजनेस एनवायरनमेंट, पूरा इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर्स जो है बिजनेस एनवायरनमेंट के वो चेंज हो गए, तब आपको चेंजेस करना पड़ेगा। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को आप एक्सेप्ट करते हो, राइट, एडवांस में कुछ करना है ना, अभी वो पुराना फ़ोन यूज़ करोगे कैसे चलेगा, मेरे पास पड़ा है, राइट, देख सकते हो आप, ये वाला, सिर्फ एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा हूँ लेकिन सिंपल चीज़ है, राइट। तो सिंपल है, इसको लेके अब मैं क्लास तो नहीं ले सकता ना, नहीं ले सकता, 101% में नहीं ले सकता, राइट, इसमें सिर्फ कॉलिंग होता है। लेकिन हाँ, बैटरी बैकअप 4 दिन का। तो सिंपल चीज़ है, मैं ऐसा नहीं कहता कि आई एम नॉट एक्सेप्टिंग द टेक्नोलॉजी, बट सिंपल वो भी है कि टेक्नोलॉजी जब आप एक्सेप्ट करते हो, राइट, तो यूजफुल होनी चाहिए। तो एडवांसमेंट कोई प्रोडक्ट के लिए ज़रूरी है। और लास्ट वन, न्यू डिस्कवरीज, ये डिपेंड करता है रिसर्च के ऊपर, ये डिपेंड करता है एक पर्सन के ऊपर, यूनिट के ऊपर, तो उसकी वजह से आपको चेंजेस करने पड़े। तो डोंट बी रिजिड, चेंज कर लो, फ्लेक्सिबल रहो। नेक्स्ट वन, सिक्स्थ वन, establishment of interrelationships. The organizing establishes interrelations और interrelationship among work. अब कहाँ ये पर्टिकुलरली हमको रिलेशनशिप क्रिएट करना है, तो हमारे काम में, हमारी पोजीशन में और डिवीजन में। तो देयर मस्ट बी अ एस्टैब्लिशमेंट और एस्टैब्लिशेस द इंटर रिलेशनशिप अमॉन्ग वर्क, पोजीशन और डिवीजन्स। आपका जो भी काम है, राइट, आपकी जो भी पोजीशन है और आपका जो भी डिवीजन है, उसमें शायद रिलेशंस आपको क्रिएट करने पड़े। डोंट फॉरगेट, इट गिव्स क्लैरिफिकेशंस अबाउट द रिलेशनशिप ऑफ वन वर्क विद द अदर वर्क एंड ऑल्सो वन डिवीजन विद द अदर डिविजन्स। सो समटाइम इट हैपन्स कि जब भी इंटर रिलेशंस क्रिएट होता है, इंटर रिलेशनशिप आपको करना पड़ता है वर्क, पोजीशन, डिवीजन के बीच में, राइट, जो भी हो आपका काम, पोजीशन जो भी हो, तो आपको क्लैरिफिकेशन इसके हिसाब से मिलेगा कि रिलेशंस एक काम के लिए अलग काम के साथ कैसे जुड़ा हुआ है, एक डिवीज़न का अलग डिवीज़न से क्या है, ये सब देखना पड़ेगा। उसके बाद ये इंटर रिलेशंस के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट होगी, यानी वी हैव टू एस्टैब्लिश दैट रिलेशनशिप। हमें भी आगे भी देखा इंटर रिलेशनशिप कैसे ह्यूमन एलिमेंट के साथ जुड़ी हुई है, ये दोनों साथ में ही चलते हैं। सेवंथ वन, मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अब सी, विदाउट कंट्रोल, विदाउट मॉनिटरिंग द वर्क, पीपल, डिवीजन, यूनिट, you can't able to run the business. So see how monitoring, control and coordination are the basic requirements of any organization. One more question, કઈ બાર ऐसा होता है कि સર આવું આવે, હા આવે એવું કશું નહીં, રાઈટ, એવું આવી જાય, તમને એવું લાગે કે આવો ક્વેશ્ચન હશે, હા ઘણી વાર છોકરા કહેશે બધું ઇમ્પોર્ટન્ટ જ છે તો પછી બધું વાંચી જ લે ને, હા વાંચવું જ પડશે, 101% you have to read everything if you want to score more, if you want to get જે ઘણીવાર આપણે વધારે પડતી આપણને ક્યુરિયોસિટી હોય કે હું શું કરી નાખું, શું કરી નાખું, રાઈટ. સો ઇફ યુ વોન્ટ ટુ ગેટ મોર માર્ક્સ, યુ વોન્ટ ટુ બીકમ અ પર્સન વિથ ધ હાઈ ગોલ્સ, આપણે ગોલ પર જઈએ કારણ કે આપણે ઓબ્જેક્ટિવ એવો જ છે. સો સ્વાભાવિક છે તમારે બધું વાંચવું પડશે, એવરીથિંગ ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ ટુ યુ. અગર તમારે પાસ જ થવું છે તો એ પણ આપણી જોડે ઘણી બધી વસ્તુઓ છે, પાસ થઈ શકાય, પણ આપણે એને ફોલો નથી કરતા બેટા, આપણે વધારે આગળ વધવું છે, રાઈટ. સો યસ, એક માર્કનો પ્રશ્ન, મોનિટરિંગ, કંટ્રોલ એન્ડ કોર્ડિનેશન આર ધ બેઝિક રિક્વાયરમેન્ટ્સ ઓફ એની ઓર્ગેનાઇઝેશન. એટલે મોનિટરિંગ, કંટ્રોલ તો થશે જ, સાથે સાથે કોર્ડિનેશન હોવું જરૂરી છે. ઓકે, વેધર ધ એમ્પ્લોય ઇઝ પરફોર્મિંગ હિઝ ટાસ્ક એઝ પર ધ પાવર્સ એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટીઝ અસાઇન્ડ ટુ હિમ ઓર નોટ, whatever the work is given to him or her, allotted the work, whatever, right, એના પ્રમાણે કામ કરે છે, right, also he is using his authority, also he is doing the work or not.
સો ઓથોરિટી એન્ડ રિસ્પોન્સિબિલિટી પ્રમાણે કામ થાય છે કે નહીં. પાવર્સ દેટ ઇઝ કમ્પ્લીટેડ પાવર્સ વી કેન સે ઇટ ઇઝ authority. So as per the particular task whatever he is or she is performing with powers and responsibility જે એમને આપવામાં આવ્યું છે એ પ્રમાણે કામ થાય છે. સો ક્યાંથી ખબર પડશે? થ્રુ ધ મોનિટરિંગ એન્ડ કંટ્રોલ. સો ફોર સચ મેટર્સ પ્રોવિઝન્સ ઓફ ધ મોનિટરિંગ એન્ડ કંટ્રોલ આર ફાઉન્ડ ઇન ઓર્ગેનાઇઝિંગ. તો આની એક પર્ટિક્યુલર થીમ હોય છે, પર્ટિક્યુલર ગાઈડલાઇન હોય છે. વી હેવ ટુ દેટ ફોલો ફોર પ્રોવિઝન્સ વિચ આર ધેર ફોર ધીસ પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ ઓર વોટ એવર ધ પર્ટિક્યુલર ડિપાર્ટમેન્ટ ઇઝ ધેર. સ્પેસિફિક ડિપાર્ટમેન્ટની પોતાની વાતો હોય છે, એના પરથી જ કામ થાય છે. નેક્સ્ટ વન 8.1 ગ્રુપ એક્ટિવિટીઝ. આ કોમન વસ્તુ છે. ઇન ઓર્ગેનાઇઝેશન મેની પીપલ વર્ક ટુગેધર ફોર ધ અકમ્પ્લિશમેન્ટ ઓફ અ કોમન ગોલ. એટલા માટે કહું છું કે શરૂઆત આપણે આનાથી જ કરી હતી. વી સ્ટાર્ટ ઓર એટ ધેટ ટાઈમ વેન ધ ચેપ્ટર સ્ટાર્ટેડ લાસ્ટ પર્ટિક્યુલર સેશન ઇન લાસ્ટ લેક્ચર ઓર લાસ્ટ વિડીયો ઓલ્સો કે આપણે વાત કરી હતી મોસ્ટલી પીપલ મોર દેન 2 પીપલ આર વર્કિંગ ટુગેધર ફોર ધ અચીવમેન્ટ ઓફ ધ ગોલ, કોમન ગોલ, ત્યારે લોકોની જરૂર પડશે. સો ધેટ્સ વાય વી કેન સે કે ધ ઓર્ગેનાઇઝિંગ પ્રોવાઇડ્સ ઇફેક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર ટુ ધેમ those who are here to accomplish the objectives or a common goal, right? together કામ કરે છે બધા. તો એક ઇફેક્ટિવ સ્ટ્રક્ચર ઇઝ ધેર ટુ ધેમ સો ધેટ ધ ગ્રુપ એક્ટિવિટી કેન બી કન્ડક્ટેડ પ્રોપરલી. સો ગ્રુપ એક્ટિવિટી કેન બી કન્ડક્ટેડ પ્રોપરલી. જે પણ કામ છે સારી રીતે થશે, કોમન ગોલ. એન્ડ લાસ્ટ વન કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર. ઓર્ગેનાઇઝિંગ ઇઝ અ પર્ટિક્યુલર કાઇન્ડ ઓફ કંટ્રોલ એડમિનિસ્ટ્રેટિવ સ્ટ્રક્ચર. આ ઓર્ગેનાઇઝિંગ એક એવું પર્ટિક્યુલર કંટ્રોલ સ્ટ્રક્ચર છે, રાઈટ. મે બી વી કેન સે કે ઇફ ઇટ ઇઝ નોટ કંટ્રોલ દેન સમ ઓફ ધી પ્રોબ્લેમ્સ અરાઇઝ. તો એને થોડું કંટ્રોલમાં રાખવું પડે. સો ઇન એની બિઝનેસ યુનિટ રૂલ્સ એન્ડ કંટ્રોલ્સ આર રિક્વાયર્ડ in order to define relationship. Whenever the work is allocated to you as per your qualification, experience, skill, right, capability, capacity, sometimes you're doing your work in a proper way. Every businessman is trying to give best salary to their employees, but sometimes people, those who are working, they are not following the rules. So that's why rules and controls are required, right, in order to define relationship. એની માટે હોવું જોઈએ એક પર્ટિક્યુલર ફોર્મેટ. સો ધ સેમ ઇઝ ફોર્મ બાય ઓર્ગેનાઇઝિંગ. આ જ વસ્તુ ઓર્ગેનાઇઝિંગથી ક્લિયર થશે. તો જ ખબર પડશે ને વોટ એવર ધ વર્ક ઇઝ ગિવન બાય. તમને કામ સોંપ્યું, તમારા પ્રોડક્શનમાં ધ્યાન આપવાનું, યુ આર ધ સુપરવાઇઝર. તમને કામ સોંપ્યું છે, તમે જ ખુદ ધ્યાન નહીં આપતા, હાઉ ધ વર્કર્સ વિલ વર્ક. તો તમારી ઉપર કોઈક હશે ને સુપિરિયર. ધ પર્સન ઇઝ ધેર, રાઈટ, હુ ઇઝ વોચિંગ યુ, હુ ઇઝ કન્ટિન્યુઅસલી મોસ્ટલી વોટ એવર ધ વર્ક ઇઝ ગિવન બાય ધી અપર લેવલ યુ આર ડુઈંગ. સો એ પણ તમારું ધ્યાન રાખતા જ હોય ને, સિમ્પલ છે. તો ઓર્ગેનાઇઝિંગમાં આ ફોર્મ થશે. So dear students, this is the particular information related to the characteristics. Total 9 points we discussed. મેં તમને કહ્યું પ્રમાણે ક્વેશ્ચન્સ કયા આવે છે, ઓકે, ધ્યાન રાખજો. ડેલી નોટ્સ સમય કરાવી દેજો ટાઈમ ટુ ટાઈમ. ઓકે, સ્ટે સેફ, સ્ટે એટ હોમ, ટેક વેક્સિન વેન એવર યોર ટર્ન કમ્સ, રાઈટ. આસ્ક યોર પેરેન્ટ્સ રજિસ્ટ્રેશન થયું કે નહીં, કરાવી દેજો. તમારે હજુ વાર લાગશે બિકોઝ 18 નથી થયા, પણ વોટ એવર જ્યારે સમય આવે પેરેન્ટ્સે રજિસ્ટ્રેશન ના કરાવ્યું હોય તો કરાવી દેજો. થેન્ક યુ વેરી મચ.